یہ نام زبانوں کی طہارت کے لیے ہے۔ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی سماعت ہے۔ میں اب آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے الحمدللہ حضور تاج الفقہا خلیفہ تاج شریعت مناظر اہل سنت فاتح کرناٹکا حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جن کی تقریر کی کنگھیوں سے ہم اپنے بدعقائد کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، جن کی تقریر سے بدعقائد کے قب و مینار مسمار ہوتے ہیں، جن کے خطاب سے ہمارے دلوں کے فریم میں کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تصویر چسپا ہوتی ہے۔ آئیے اس خوبصورت خطیب کا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، استقبال کر لیں۔ میں حضرت کی خوبصورت درسگاہ میں آپ جیسی خوبصورت سماعتوں کے مالکان کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ذرا اور محبتوں کے ساتھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کانفرنس، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم عالم، فیضان حضور تاج الشریعہ، آمد حضور تاج الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حضور تاج الفقہا کی تقریر کے بعد انشاءاللہ فوراً خطیب اہل سنت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کی بھی آمد ہو جائے گی۔ ٹھیک الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات،
ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت گنبد خضرا کانفرنس میں شریک ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کو تازگی دے رہے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سے آپ حضرات شعراء حضرات سے نعت و منقبت کے اشعار سن کر دل و دماغ تازہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ علماء کرام کے خطابات کو بھی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت ساری قیمتی باتیں سننی ہیں۔ رات کے اس وقت میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ مجمع اور اس کا اس طرح بیدار رہنا یہ اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا کریم ہمیں اسی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اس وقت دنیا بھر میں انسانوں کا ایک سیلاب ہے۔ ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی انسانوں کی پائی جاتی ہے۔ 8 ارب آبادی میں 6 ارب آبادی ایسے انسانوں کی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ گویا اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے منکر ہیں۔ علی الاعلان کھلم کھلا رسول کائنات کا انکار کرتے ہیں۔ 2 ارب آبادی ان لوگوں کی ہے جو رسول کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گویا 6 ارب کا حال یہ ہے
کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں۔ کیا کہنے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، اور جو 2 ارب ہیں ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی وفادار امت میں منتخب کر لیا ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور واقعی وہ صاحب ایمان ہوں، آپ حیرت میں مت پڑیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے اور پھر بھی وہ بے کلمہ کی صف میں ہو۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کے ارد گرد کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے۔ پہلے پارے میں اس گروہ کے بارے میں فرمایا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر یہ مومن نہیں ہیں۔ اسی گروہ کے بارے میں قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا گیا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ جب منافقین آپ کے دربار میں آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر قرآن نے ان کے بارے میں آگے فرمایا کہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھنے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں، تو آج 1400 سال کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ سب صاحب ایمان ہوں؟ کیا کہنا، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کیا کہنا، کلمہ پڑھنے والے اس ہندوستان میں مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہی عرض کر کے جاؤں گا کہ فتنوں کے ہجوم میں ان کلمہ پڑھنے والی جماعتوں کے بیچ میں وہ کون سی مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت اور خوش نصیب جماعت ہے جسے واقعی وفاداری مصطفیٰ کی برکت حاصل ہے۔ ماشاءاللہ، 2.25 ارب سے 2 ارب کے قریب کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت، اس میں ایک گروپ ایسا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے مگر اس کے باوجود خدا کی شان میں توہین کرتا ہے۔
قرآن کریم کا صاف صاف نہ صحیح انڈائریکٹ انکار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں ہے خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جھوٹ ایک عیب ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی ہندوستان میں پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں آپ سے انصاف کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ایسے لوگ صاحب ایمان ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے ماننے والے ہیں؟ صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ جس طرح سے ماننے کا حکم قرآن اور حدیث نے دیا ہے، جب اس طرح سے مانیں گے تو اس ماننے کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ ماننے کے باوجود آپ حقیقت میں منکر کہلائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت محمد اختر حسین قادری دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے اس کی تقریر سنی اور سن رہے ہیں۔ کل صبح آپ سے کوئی پوچھے کیا اختر حسین قادری دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی سے آیا ہوا تھا؟ آپ نے کہا ہاں، ہم نے ان کی تقریر سنی ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ آپ نے کہا نہایت کالے کلوٹے ہیں، ایک آنکھ سے معذور ہیں، ہاتھ بھی صحیح سلامت نہیں ہے، ایک پیر سے بھی لنگڑے ہیں۔ بتائیے آپ مجھے مان رہے ہیں کہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا کہنا؟ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہاں میں نے رات اس کی تقریر سنی، اسے دیکھا، اور صبح جب آپ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں جس سے ایک حقیقت پسند انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ آپ مان نہیں رہے ہو بلکہ آپ مذاق اڑا رہے ہو۔ بہت اچھا اشارہ حضرت۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں جیسا ہوں اگر آپ مجھ کو ویسا کہیں گے تب آپ کے ماننے کا اعتبار ہوگا، کیا کہنا؟ اور میں جیسا ہوں ویسا نہیں مانیں گے تو آپ مان نہیں رہے بلکہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ ایک عیب ہے۔ جو کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بتائیے اس نے خدا کو ماننے کا دعویٰ کیا یا خدا کا مذاق اڑایا؟ کیا کہنا؟ یہ ماننا نہیں ہے، یہ حقیقت میں خدا کا مذاق اڑانا ہے، خدا کا انکار کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ایسے لوگ ہیں؟ میں کہوں گا علماء کی ایک نورانی جماعت آپ کے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی آپ کے لیے پہنچنا مشکل ہوگا، آپ ان کی خدمت میں پہنچیے، یہ آپ کو پتہ بتا دیں گے، یہ گریبان پکڑ کر کے آپ کو دکھا دیں گے کہ کون ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو رسول پاک کا کلمہ تو پڑھتا ہے مگر اس کے باوجود حقیقت میں وہ نبی کریم کا انکار کرتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ جو جیسا ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں مانیں گے
تو یہ ماننا نہیں کہلائے گا بلکہ در حقیقت انکار کرنا کہا جائے بے گا۔ شک بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے اپنی قدرت کا، اپنے علم کا، اپنی رحمت کا، اپنی رافت کا جلوہ بنا کے بھیجا۔ ماشاء اللہ۔ اب اگر کوئی شخص رسول پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رسول مجبور ہوتے ہیں، وہ مختار نہیں ہوتے ہیں، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، تو وہ حقیقت میں نبی کو مان نہیں رہا ہے بلکہ نبی کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کا انکار کرتی ہے مگر زبان سے قوم کے درمیان جا کر اس کا اقرار کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ نبی، یہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، مگر ایک جماعت اپنی کتاب میں لکھتی ہے، اپنے ماننے والوں کو سمجھاتی ہے کہ نبی کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ میں نے قادیانی مذہب کی ایک کتاب پڑھی، اس کتاب میں ایک قادیانی رائٹر نے اپنے عقیدے کو پناہ کے قلعے میں محفوظ کرنے کے لیے سہارا لیا تو ہندوستان کے ایک عالم کا نام اس نے درج کیا اور اس کی ایک کتاب کا حوالہ دیا۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، اور وہ قادیانی کہتا ہے کہ دنیا بھر کے مولانا لوگ ہمیں بے دین اور کافر و مرتد کہتے ہیں، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں یہی عقیدہ خود تحذیر الناس کے اندر مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے۔ اس نے پناہ لی ہے تحذیر الناس کتاب کے حوالے سے اور کہا ہے کہ اگر ہم مسلمان نہیں تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بے دین ہیں تو ان کے اوپر بھی بے دینی کا حکم لگانا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو قرآن کریم پڑھتی ہے اور نبی کا یہ وصف بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ یہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر وہ اپنی کتابوں میں لکھتی ہے جماعت کی حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اسی کا سہارا لے کر ہندوستان کے ساحلی صوبوں میں مثلاً کیرلا ہے، تلنگانہ ہے، کرناٹک ہے، اڑیسہ ہے، ان علاقوں میں بہت سارے قادیانیوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے، بہت ساری مسجدیں انہوں نے قائم کر لی، نہ جانے کتنے نوجوان قادیانی ہو گئے۔ آج بھی آپ جا کر کے ان علاقوں کا دورہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں قادیانی مذہب کے نہ جانے کتنے مبلغین علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، زبان پر کلمہ طیبہ ہے، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جا کر نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، یہ فلاں مولوی نے لکھا ہے۔ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر اس کا دعویٰ کر لیا تو آخر کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ میں ایک موقع پر ہمدرد یونیورسٹی دہلی گیا اور وہاں کے ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ جب باہر نکلا، سڑک پر گاڑی تیزی سے چلنے لگی، میں نے روڈ کے بغل میں دیکھا ایک مسجد ہے، اس کے اوپر خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا بہت خوبصورت تحریر ہے، یہ کن لوگوں کی مسجد ہے؟
कलमे तैयबा बहुत ही नुमाया और खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बताया धोखा मत खाइए, इस कलमे के लिखने से ये कादियानियों की मस्जिद है। आप कहां हैं? आपका तसव्वुर कहां है? आप समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारे लिए काफी हो गया। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। क्या बात, वाह। मैं एक मौके पर केरला गया, कालीकट शहर में मेरा कयाम था। रात में मेरे कुछ केरला के अहबाब बैठे हुए थे, मैं उनसे मजहबी मामले पर गुफ्तगू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कालीकट के अंदर किस किस फिरके के कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं। उन्होंने कई एक का नाम लिया और उसमें कादियानी का भी जिक्र किया। रात में तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं लेटने जा रहा था मगर मैं फौरन चौंक कर बैठ गया। मैंने कहा क्या आपके शहर में भी कादियानी हैं? कहा हजरत सिर्फ कादियानी है ही नहीं, उनकी मस्जिद है, उनका इदारा है। मैंने कहा होटल से कितनी दूरी पर वाक़ है? बताया तकरीबन 3 किलोमीटर। मैंने कहा मैं चलना चाहता हूँ, क्या कहना, मैं उसे देखूंगा चल करके। चुनांचे रात में होटल से मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और फिर कुछ देर के बाद मेरी गाड़ी जा करके एक गेट के सामने खड़ी हो गई। अंदर गए तो देखा 3 मंजिला शानदार इमारत है। उनका मुबल्लिग वहां पर टहल रहा था और सामने एक बोर्ड पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर अब तक इस जमाअत के जितने सरगना और पेशवा गुजरे थे सबका नाम, उनका तारुफ लिखा हुआ था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा क्या केरला के अंदर अपनी जमात यानी कलमा पढ़ने वाले इस जमात से मुंसलिक हैं? कहा तकरीबन 1000 घर के लोग कादियानी हो चुके हैं कालीकट के अंदर। 1000 घरों के लोग कलमा पढ़ने के बावजूद कुरान करीम के मुनकिर हो चुके हैं और वो कादियानी मजहब कबूल करके उसकी तबलीग में लगे हुए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ बड़े बड़े शाफई उलमा हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि कादियानियत यहाँ पनप रही है। मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है, तो बताया चूंकि कादियानियों का यहाँ रद्द नहीं किया गया, उनका तारुफ करा करके उनके बारे में बताया नहीं गया, इसलिए हमारा नौजवान ये समझता है कि ये भी एक इस्लामी जमात है, इसलिए उसमें शरीक हो गए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर लिया। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, मेरे नबी की शान को बयान करते हुए कुरान ऐलान करता है वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे रसूल, जो नहीं जानते थे मैंने सब इल्म तुम्हें अता कर दिया। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। मुझे बताइए क्या ऐसे लोग कुरान करीम को मानते हैं या कुरान का मजाक उड़ाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है और अपनी कब्रों में वो नमाज पढ़ते उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये रसूल पाक का फरमान है। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक टोली कहती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बताइए क्या इस जमात ने कुरान और हदीस को माना या कुरान का इनकार किया? ये कलमा पढ़ने वाले रसूल पाक को सही ढंग से मानने वाले हुए या रसूल पाक का इनकार करने वाले हुए? आप समझते हैं कि ये लोग हमारे दरमियान तो आकर इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, इसीलिए शायर ने कहा है तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। मैं एक मौके पर मक्के मुकर्रमा और मदीने तैयबा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। मदीने तैयबा में हाजिर था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी की साथ
नमाज असर पढ़कर मैं अंदर जो कदीम मस्जिद नबवी है उसी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक नौजवान हाथ में एक किताब लिए हुए आया और ऐसे ही किताब जमीन पर फेंका और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया, देखा तो उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। आप हजरत बैठे बस थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। मैंने वो किताब हाथ में ले ली। जब वो नौजवान नमाज पढ़ चुका, मैं उससे करीब हुआ, किताब मेरे हाथ में थी। मैंने उससे कहा हल अस्ततियु अन अतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसने कहा ला बासा भी, कोई हरज नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो, आपका मशगला क्या है, आपका वर्क क्या है, आपका काम क्या है? उसने कहा अतअल्लम फिल जामिया अल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ का तालिबे इल्म हूँ। मैंने उससे पूछा ऐन तस्कुन, आप रहने वाले कहाँ के हो? उसने कहा अस्कुन मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक सूडान से है। मैंने उससे पूछा फी अय्य सफ़िन तक़रा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा फी सफ़ी साबिअ, मैं 7वीं क्लास का तालिबे इल्म हूँ। मैंने उससे पूछा हल क़राता किताबन फिल अक़ीदा, क्या आपने अक़ीदे की कोई किताब पढ़ी है? उसने कहा ला, मैंने अक़ीदे की कोई किताब अब तक नहीं पढ़ी है। मैंने सोचा कि लाओ जरा मालूम करूं ये इधर का है या उधर का है, ये सुन्नी सही अक़ीदा है या कुछ और है। सूडान अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां का रहने वाला। उससे मैंने पूछा अन्नास यज़हबून इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक की बारगाह में लोग फौज दर फौज पहुंच रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? मैंने सोचा कि लाओ ये सवाल करूं, अगर ये कहता है कि सुनते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इधर का है, और अगर इनकार करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उधर का है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनांचे मैंने उससे जब ये कहा अन्नास यज़हबून इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग रसूल पाक के रोज़े अतहर पर गुंबदे खजरा पर हाजिरी दे रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं? उसने आओ देखा न ताव, फौरन कहा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआनिल करीम इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून। उसके बाद खुद आगे वो कहता है फकुल्लुहुम सवा सवा। इसका मतलब आप नहीं समझ सके, उलमा ने समझ लिया होगा, आप ज्यादा समझदार हैं इसलिए नहीं समझ सके। मौलाना लोगों को आप लोग ओल्ड मैन समझते हैं, कहते हैं ये तो 1400 साल पुरानी ही बात बताते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। ये लोग यही कहते हैं नमाज यूं पढ़ो, रोजा यूं रखो, कुर्ता यूं पहनो, लिबास यूं पहनो, आप अपने आप को यूं रखो, बाल यूं रखो, दाढ़ी यूं रखो, ये इसी में फंसे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई? मेरे नौजवानों बताओ दुनिया कहां से कहां चली गई है? नमरूद कहां चला गया? फिरऔन कहां चला गया? कारून कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? उतबा और शैबा कहां चले गए? बड़े बड़े उद्योगपति कहां चले गए? सब के सब इसी जमीन में दफन हो गए, किसी का कोई नाम बाकी नहीं, मगर मुस्तफा के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरे मुजाहिदे मिल्लत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ताजुल शरिया कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। गुंबदे खजरा की छांव में लोग सलाम पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने जब उससे पूछा उसने यही जवाब दिया जो मैंने आपको सुनाया, मगर आप शायद नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? इसलिए कि मैंने अरबी में जवाब दिया, और ये अरबी जो मैंने पढ़ी, इस अरबी में पहला हिस्सा कुरान करीम की आयत करीमा है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो
कहता क्या है मेरे सवाल के जवाब में? क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है, फकुल्लुहुम सवा सवा, सब के सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सब के सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबदे खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। मैं गुंबदे खजरा की छांव में बैठा हुआ था, मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है, उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा, हल समेत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है, मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है, क़द सह्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्न क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है, बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं? यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की बहारों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। जब उसने कहा मैं मानता हूँ तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं।
میں نے ابن قیم کے حوالے سے حدیث پیش کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی زندہ ہیں اور جو زندہ ہے وہ بلا شبہ سنتا ہے. تو اب بتائیے آپ نے جو آیت پیش کی جس سے آپ نے ثابت کرنا چاہا کہ نبی سنتے نہیں ہیں وہ صحیح ہے، یا جو حدیث میں نے ابن قیم کے حوالے سے پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں سنتے ہیں یہ صحیح ہے؟ دونوں میں صحیح کیا ہے؟ اب وہ بیچارہ امتحان میں پڑ گیا. بہت دیر تک وہ سوچتا رہا. جب اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے مجھ سے کہا بین معنی هذه الآیہ وهذا الحدیث، یا شیخ بین لنا معنی هذه الآیہ وهذا الحدیث. کہتا شیخ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ دونوں میں صحیح کیا ہے، مجھے حدیث کا بھی معنی بتائیے، قرآن کریم کی آیت کا بھی مطلب سمجھائیے. میں نے اس کو تھوڑی دیر تک اپنے انداز میں پریشان کیا تاکہ یہ سمجھ جائے کہ سکے کے ایک رخ کو دیکھ کر کے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے جب تک کہ سکے کے دونوں رخ کا مطالعہ نہ کیا جائے. آج کل کچھ لوگ سکے کا ایک رخ دکھا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو امام احمد رضا کا کمال ہے کہ اس نے ہر حقیقت سے نقاب کو الٹ کر کے اور قوم کو گمراہوں سے متنبع کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں نے اس کے سامنے جب تفصیل رکھی اس نے کہا شکرن لگایا شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قرآن اور آیت حدیث کا مطلب سمجھا دیا. اور اس نے تسلیم کیا کہ بے شک نبی زندہ ہیں اور قبروں میں اپنے اپنے آرام فرما، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے اور پکارنے والوں کی پکار کو وہ سنتے ہیں. اس نے اس بات کو تسلیم کیا. میں نے سکے کا دونوں رخ جب اس کے سامنے رکھا ہوا حیرت میں پڑ گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایک جماعت جبہ و لباس میں قوم کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگی ہوئی ہے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر رہی ہے اور حدیث کا بھی انکار کرتی ہے. اسی ہندوستان میں یہ جماعت بھی پائی جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ میں کسی کی شان میں گستاخی کے کلمہ مت بولنا. رسول پاک کا ارشاد ہے میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کی شان ایسی بلند و بالا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 کلو 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ رسول پاک کے صحابہ کی شان ہے. مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اس وقت ہندوستان بھر میں توہین صحابہ کی تحریک چلا رہا ہے اور جگہ جگہ رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنی بدبختی کا ثبوت دے رہا ہے. بتائیے رسول پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے صحابہ کو تم برا مت کہنا، مگر جماعت ایک ایسی پائی جاتی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کے صحابہ کی توہین کر رہی ہے. جگہ جگہ اپنی مسجدوں میں، اپنے عوام میں، اپنے لوگوں میں صحابہ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے 2 مہینے کے اندر مجھے 2 مرتبہ ایسے ناہنجاروں سے مناظرہ کرنے کے لیے مجبوراً جانا پڑا. پہلی بار میں بنگلور گیا اور ابھی چند روز پہلے مجھے جھانسی جانا پڑا. لیکن الحمدللہ دونوں جگہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برفبار، آدھا سے کہہ دو خیر
बनाए न शर करें। क़यामत तक जब तक मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो कुछ न कहूँगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब के जरिया उनके नापाक अज़ाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आज़म का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं। और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की। बहुत खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, राही बस्तवी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के गांव में प्रोग्राम था। इत्तेफाक से कमरे में चंद उलमा के साथ मैं बैठा हुआ था। नकीबे इजलास बार बार एक शेर पढ़ रहा था, उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। उसने 3-4 मरतबा ये शेर पढ़ा। मैंने राही साहब से कहा ये क्या पढ़ रहा है, जरा सुनिए। वहां जो उलमा मौजूद थे उनसे भी मैंने कहा ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। उसमें एक जी सलाहियत आलिम दीन थी, उन्होंने फरमाया कि ये शेर तो काबिल एतराज लगता है, इसलिए कि ये तबर्रा किया जा रहा है अहले सुन्नत पर, जिनको बारे में शायर कहता है उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। मैं स्टेज पर गया, मेरी तकरीर का भी आज जनाब ही ने ऐलान किया, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया कि शायर अपने शेर का मतलब अच्छी तरह से बता सकता है, नकीबे इजलास जरा बताएं कि वो कौन लोग हैं जो उलझे हुए हैं, और वो कौन है जो 3-4 हैं, और वो कौन है जो अहले बैत को पा चुके हैं। इसका पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आगे तकरीर करूंगा। वो बेचारे घबरा गए, इसलिए कि वो शेर तो पढ़ रहे थे मगर शायद इसके मतलब पर कभी वो गौर नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 और 4 में उलझे नहीं हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कौन है जो अहले बैत को नहीं पाया? अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी सहीउल अकीदा अहले बैत की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। हर सुन्नी सहीउल अकीदा अपने आप को उनका गुलाम समझता है। मेरे इमाम अहमद रजा ने जो सारी दुनिया के सुन्नियों के दिल की धड़कन है, जो इल्म की आबरू है, जो अहले सुन्नत का वकार है, जो फजलो कमाल का ताज महल है, जो हिकमत और दानाई का हिमालय है, उसने अपनी दुआ के कलिमात में हमको सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो यूं कहो, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुहिब्बे अहले बैत हैं कि यहाँ भी उनके खादिम होने की दुआ करते हैं और वहां भी उनका खादिम बनकर रहने की तमन्ना कर रहे हैं। कौन है वो
जो अहले बैत पाके खुश नसीब हो गया, और कौन है वो जो उलझे हुए हैं। हमारे स्टेज से जब इस तरह के अशार पढ़े जाएंगे तो बिला शुबहा राफिजियत जन्म लेगी। इसीलिए आज मदरसों के सुन्नी इदारों के पढ़े हुए न जाने कितने तलबा राफिजी हो गए, न जाने कितने पढ़े लिखे मौलवी गुमराह और गुस्ताख हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं जिसने इमाम अहमद रजा का दामन छोड़ा वो कहां जाकर के गिरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं, एक पतंग है, पतंग उड़ाना जायज है कि नाजायज ये एक अलग मसला है, लेकिन आपने देखा होगा पतंग उड़ाने वाला जब पतंग उड़ाता है तो हाथ में उसकी डोरी रहती है और पतंग ऊपर चली जाती है, और अगर बीच से डोरी टूट जाए, उसे काट दिया जाए तो पतंग कुछ देर के बाद जमीन पर गिरेगी, मगर कहां गिरेगी इसका कोई पता लता नहीं है। वो जब टूटेगी तो किसी के खलियान में भी जा सकती है, किसी के दुकान में भी गिर सकती है, किसी के आंगन में भी गिर सकती है, किसी के खेत में भी गिर सकती है, गंदे और गलाजत में भी गिर सकती है, तालाब में भी गिर सकती है। इसी तरीके से जो इमाम अहमद रजा की डगर को छोड़ देता है वो कहां जाकर के गिरेगा, वो राफजी बनेगा कि वो नजदी बनेगा कि वो सुलह कुल्ली बनेगा कि वो शिया बनेगा कि वो कौन से बदअकीदगी की गोद में जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम जिंदगी दी गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा इकराम जिंदा। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कहती है तुम्हें गौस क्या देंगे, तुम्हें ख्वाजा क्या देंगे, तुम्हें मखदूम सिमना क्या देंगे, वो तो खुद ही मुहताज हैं, उनके यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। कलमा पढ़ने वाले तरह तरह से यहाँ पर बिखरे हुए हैं। अब आइए आखिरी स्टेज पर, इन फितनों के हुजूम में आपको कैसे पता चलेगा कि किधर चलना है, फितनों के हुजूम में आप किस रास्ते पर चलेंगे। एक मिसाल से समझ लीजिए, जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तकरीबन 5.5 घंटे का सफर करके अभी मुझे जमदाशाही पहुंचना है। कोहरे का दौर आ रहा है, ठंडक का मौसम आ रहा, यूपी का कोहरा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अगर दिसंबर और जनवरी में रात के सन्नाटे में तारीकी में कोहरे के मौसम में सफर करना हो तो आदमी क्या करता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट रोड पर एक रेडियम की पट्टी लगा देती है, रात के सन्नाटे में तारीकी में कोहरे में भी वो पट्टी चमकती है। गवर्नमेंट ने इस पट्टी का इंतजाम क्यों किया है, इस रेडियम की पट्टी को क्यों लगाया है, ताकि चलने वाला अपनी जान को बचा सके, अपनी गाड़ी की सेफ्टी कर सके, डिवाइडर से न टकराए और बाईं तरफ जाकर गड्ढे में न जाने पाए, उसी लाइन पर वो सीधा चलता रहे। और वो रेडियम इतना चमकदार होता है कि रात में तारीकी में कोहरे में भी वो पट्टी नजर आती है और मुसाफिर उसी पट्टी के सहारे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अगर उसने इधर उधर रुख किया तो या तो गाड़ी डिवाइडर से टकराएगी या चली जाएगी गड्ढे के अंदर, इसलिए वो भी डरता है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने जान की हिफाजत के लिए एक शानदार रेडियम की पट्टी रोड पर लगा रखी है, ताकि कोहरों के बीच अगर किसी को रात के सन्नाटे में सफर करना हो और कोई मुसाफिर सफर करना चाहता हो तो अपनी जान की सेफ्टी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। ऐ हमारे उलमाए किराम, आपका हम पर एहसान है कि फितनों के हुजूम में आपने हमारे लिए एक बेहतरीन पट्टी अता कर दी है, जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। ये वो पट्टी है कि जो इस पर चलता रहेगा इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंच। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। आप खुद जरा गौर कीजिए, एक कहने वाला वो भी अपने आप को आलिम कहलाता है, मौलवी कहलाता है, और वो कहने वाला कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर दूसरी तरफ से इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं, तो जिंदा है वल्लाह,
तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक तरफ एक कलमा पढ़ने वाला कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी माअज़ल्लाह अब मजबूर हो गए, नबी कुछ नहीं दे सकते, ये पढ़ाया जाता है। और न जाने कितने हमारे नौजवान इसी अकीदे के हामिल होकर अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। मौलवी कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, मगर इमाम अहमद रजा चैलेंज करते हुए कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक कहने वाला कहता है नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं, उनका इल्म बहुत थोड़ा था, मगर इमाम अहमद रजा क्या कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी रबीउल अव्वल शरीफ का मौका गुजरा है, इस मौके पर उमूमन दो तरह की आवाज आप सुनते होंगे। एक आवाज आती है ये झंडी ये बिदात है, जुलूस निकालना रसूल पाक के जमाने से साबित नहीं है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। ये आवाज भी इसी महीने से पहले वाले महीने में आपने सुनी होगी। ये झंडी क्यों लगाते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये कुमकुमों क्यों लगाते हो, अपने घरों को और मस्जिदों को कुमकुमों से सजाते क्यों हो? क्या हुजूर के जमाने में ये सब था? क्या सहाबा के जमाने में ये सब था? क्या सहाबा या रसूल अल्लाह का नारा लगाते थे? क्या वो महफिल मिलाद मुनाकिद करते थे? एक आवाज ये आ रही है और दूसरी आवाज दूसरी तरफ से क्या आती है कि अगर ये कहे कि मिलाद महफिल मिलाद हुजूर के जमाने में नहीं था, ये बिदात है, नहीं करना चाहिए, तो इधर से आवाज देने वाली जात आवाज देती है मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अगर इधर से कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह का नारा मत लगाओ, तो इधर से आवाज आती है गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये आवाज दोनों आप सुनते हैं। मुझे बताइए, आप तो इतने होशियार हैं कि बड़ी बड़ी बारीक बातों को भी आप सुनते ही समझ लेते हैं। ये चांदनी लगी हुई है और ये स्टेज लगा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा कि स्टेज के अंदर और नीचे क्या है। नीचे तो जाने दीजिए, मेरी कुर्सी के नीचे क्या है आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज इस कुर्सी के नीचे से एक आवाज आई, और वो आवाज कैसी थी, उसमें आवाज में आपने सुना म्याऊं म्याऊं। मैंने आपसे पूछा बताइए कौन सी आवाज है, तो आप क्या कहेंगे? ये किस चीज की आवाज है? किस चीज की आवाज है? बिल्ली की आवाज है। आपने मुझसे जरा भी इंटरवल के लिए टाइम नहीं लिया कि हजरत थोड़ा रुक जाइए, जा करके देख लें, थोड़ी तहकीक कर लें, जान लें कि क्या है। अभी हमने जब देखा नहीं, तहकीक की नहीं है, तो कैसे बता दे कि वो क्या है? थोड़ा मौका दीजिए। आपने फुर्सत नहीं ली, आवाज आपने सुनी और फौरन आपने डिक्लेयर कर दिया क्या है। और अगर भों भों की आवाज आई तो सुन करके आपने कह दिया क्या है। कितने होशियार हैं आप लोग, माशाअल्लाह, भदोही के लोग और बेवकूफ़ ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत होशियार लोग हैं, आवाज़ सुन करके ये हकीकत का पता लगा लेते हैं। आपने एक आवाज़ म्याऊं की सुनी, आप उसकी हकीकत तक पहुंच गए। आपने एक आवाज़ भों भों की सुनी, उसकी हकीकत तक पहुंच गए। इसका मतलब है आपके पास इतनी समझ है कि आप जानवरों की हकीकत को जानने के लिए ज़्यादा तहकीक में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ आवाज़ सुन लेते हैं और हकीकत तक पहुंच जाते हैं। अगर जानवरों की आवाज को सुनकर आप उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं, तो इन दोनों आवाजों को सुनकर के भी हकीकत तक पहुंच जाना चाहिए। जब आवाज ये आए कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उसको भी सुन लीजिए, और जब ये आवाज आए कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, दोनों आवाजों को सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और एक गद्दार मुस्तफा की आवाज है। जाहिर सी बात है, अगर आपने जानवर की आवाज को सुन करके उसकी हकीकत को जान लिया, तो इंसानों की आवाज को सुन करके भी उनकी हकीकत को जान लेना। बेशक बेशक बेशक। मगर कुछ लोग कहते नहीं सब बराबर हैं। वाह भाई वाह, सब बराबर हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर उन्हें के मुंह पर आपने उनको दो गाली दे दी तो फौरन वो अपनी आस्तीन चढ़ा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कुछ कहने की। वाह भाई वाह, नबी को कुछ कहे तो कह दो कुछ मत बोलो, सब बराबर है। हलवा और गोबर बराबर नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए, हाँ, गोबर का नुकसान नहीं होगा, हलवा ही का नुकसान होगा। क्या कहने,
मसलन गोबर कहाँ रहता है? फ्रिज में ना। अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने? गोबर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? फ्रिज में ना। ट्रे में सजा करके फ्रिज में रखा जाता है, ऐसा है क्या? कहेंगे हज़रत आप तो पता नहीं कहाँ से आकर के देहाती बोली बोल रहे हैं। हमारे इलाके में गोबरदान में रहता है, कूड़ेदान पे रहता है। हाँ, हमारे यहाँ मिठाई ज़रूर कहाँ रखी जाती है? फ्रिज में रखी जाती है। तो जनाबे गोबर कहाँ रहते हैं? कूड़ेदान पर। मोहतरमा मिठाई कहाँ रहती हैं? फ्रीज में। इत्तेफाक से एक कूड़ादान एक साहब के मकान के सामने था और जो ही दरवाज़ा खुलता तो उनके घर में सामने फ्रिज रखी हुई थी। मोहतरमा ने फ्रिज को खोला, उसमें मिठाई रखी हुई थी। मोहतरमा मिठाई ने जनाबे गोबर को दूर से देखा कि एक लड़का उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया और उसने गोबर से कहा आ जाओ, करीब आ जाओ। गोबर ने मौका गनीमत जाना और जाकर के उसने मिठाई से मुसाफा किया, मुआनका किया, खूब दोस्ती की पेंग बढ़ाई, मेल जोल खूब बढ़ाया। अब मुझको बताइए, अब गोबर कहाँ रहेंगे और मोहतरमा मिठाई कहाँ रहेंगी? ज़रा मुझको आप बताइएगा, कहाँ रखा जाएगा? दोनों को कहाँ रखा जाएगा? अगर आप कहेंगे कि नहीं, अब दोनों को उसी फ्रीज में रखा जाएगा और आपने मोहतरमा से कहा लो अब दोनों को फ्रीज में रखो, मोहतरमा अगर अपने जज्बात पे काबू न ला सकी तो आंख इतनी ज़ोरदार दिखाएंगे कि आप कांपने लगेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। और अगर ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे सुनिए, फ्रिज लाने वाले आप हैं लेकिन रोज़ाना इसकी सफाई करने वाली मैं हूँ। या तो आपकी बात रहेगी या मेरी बात रहेगी। रोजाना सफाई की जिम्मेदारी लीजिए। तो चलिए गोबर और मिठाई को फ्रिज में रखिए। इतना अगर कहा उन्होंने डांट करके, दिमाग सही हो जाएगा। फिर बीवी जो कहेगी वही माना जाएगा। बीवी ने मिठाई को लिया और गोबर को लिया और उसने अपने हाथ को बचाते हुए एक पॉलीथीन में रखा और कहा ले जाइए इसको कूड़ेदान पर फेंक आइए। चुनांचे शौहरे नामदार मजबूरन उस मिठाई और गोबर को उसी कूड़ेदान पर फेंक कर आ गए। बताइए नुकसान किसका हुआ? मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? गोबर पहले भी वही था, बाद में भी वही रहा। अलबत्ता मिठाई का नुकसान हुआ कि पहले वो फ्रिज में रहती थी, अब उसको भी उसी कूड़ेदान पे फेंक दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बदअकीदा और सही अकीदा को एक साथ देखना चाहते हैं वो उनका नहीं नुकसान करा रहे हैं बल्कि खुद आपका नुकसान करा रहे हैं कि आप तो जन्नत की बहारों में रहने वाले हो और बदअकीदा जहन्नम के कूड़ेदान में रहेगा। अगर आपने उनसे दोस्ती किया तो उसका कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान तो आप ही का होगा कि जन्नत की बहारों से निकाल करके जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बेरादर जानो माल उन पर पैदा कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कौनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। ये जिन जमातों को मैंने जिक्र किया कि जो कलमा पढ़ करके खुदा को ऐबी समझे, कलमा पढ़ करके रसूल पाक की तौहीन करे, कलमा पढ़ करके सहाबा की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद अहले बैत की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद औलिया की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद उलमाए हक की तौहीन करे, ये कभी सच्चे नहीं हो सकते। सच्चा रास्ता वो है जिसे इस जमाने में मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पे कायम रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी बाइज्जत रहेंगे। और नमाज की पाबंदी कीजिए। न जाने किस गली में जिंदगी की। हाँ, पहले तो लोग समझते थे अभी 80-90 साल जीना है, मगर अब ऐसा तस्वीर निकाल दीजिए, अब तो न जाने कहाँ क्या हो जाए। इसलिए आखिरत की तैयारी में लगे रहिए। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि आप गूगल और यूट्यूब के पक्के मुसलमान मत बनिए। जो लोग गूगल सर्च करके और यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के मुसलमान बनना चाहते हैं और अल्लामा बनना चाहते हैं, न जाने कितने लोग इधर से उधर हो गए हैं। उसी की वजह से न जाने कितने बदअकीदा हो गए हैं, न जाने कितने गंदगी में मौलवी
ملوث ہو گئے ہیں. دیکھا کسی شخص کو وہ بہت تیز یہ حدیث نمبر فلاں آیت نمبر فلاں, سب سے قابل یہی ہے, اور پتا چلا کہ اس نے روح افزا کے ساتھ زہر ملا کر کے پلا دیا اور انہیں پتا بھی نہیں چلا. اس لیے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, صرف گوگل سرچ کر کے, اور یہ انجینئر صاحب آ رہے ہیں, یہ مرزا صاحب آ رہے ہیں, یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں, ڈھیکا صاحب آ رہے ہیں. میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں جیسے جو لوگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے خوب ویڈیو بناتے تھے, مگر جب رضا کے غلام کے سامنے آئے تو ان کو اپنے علم کا احساس ہو گیا اور ان کا گلا سوکھنے لگا کہ ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ کئی مہینے سے مناظرے کی تیاری کر رہے تھے. اسی طریقے سے یہ جتنے مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے یہ ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں, جب رضا کے شعروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ لومڑی کی طرح بھاگتے ہیں. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جہاں جائیے کوئی کہتا حضرت کوئی ایسے انگلی اٹھاتا ہے, ایسے ایسے کرتا ہے, کوئی ایسے کرتا ہے, کوئی یہاں ہاتھ باندھنے لگا, انجینئر کی تقریر سن کر کے کوئی یہاں ہاتھ باندھنے لگا, کوئی ایسا کرنے لگا. اللہ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے. دین کو آج آپ سمجھ رہے ہیں, دین آپ نے آج سمجھا ہے. بتائیے غوث و خواجہ نے ہم تک جو دین پہنچایا وہ سچا تھا کہ یہ مکار جو آج ورشاپ کے ذریعہ رسول پاک کی حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ صحیح حدیث کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ کیا کہنے, واہ واہ واہ. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. کثرت سے درود شریف پڑھیے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے, قرآن کریم کی تلاوت کیجئے, جھگڑے بکھیڑے سے دور رہیے. جو شخص مستحق مدد ہو اس کی مدد کیجئے. علماء سے عقیدت رکھیے, ان کے قرب میں رہیے. جب آپ سچے علماء سے قریب رہیں گے تو آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. گنبد خضرا کانفرنس میں آپ آئے ہوئے ہیں تو گنبد خضرا کا جو پیغام ہے اسے لے کر کے جائیے. گنبد خضرا کے مکین مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرما کر دنیا اور آخرت کے سارے قوانین بیان کر دیے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے حصے میں آئے تو رسول پاک کے سچے وفادار بنیے. ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.